Today we'll be studying about chemistry, chapter 1, which is all about chemical equilibrium. You might have heard the word equilibrium before. The word equilibrium means balance. जब कोई भी चीज कोई भी रिएक्शन एक बैलेंस स्टेट में होता है, दैट इज नोन एज इक्विलिब्रियम. लेकिन बिफोर मूविंग फर्दर इनटू दिस, हम ये पढ़ लेते हैं कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है. Chemical equilibrium is basically, you can say, it is to balance a chemical reaction. um yeah, let's just define it first. Chemical equilibrium means to balance a chemical equation, or it can also mean that the rate of forward and backward reaction will become the same. For example, if I take a substance which is A and the reactant with it is B, when this will be equal to this, the product that is formed, the backward reaction, the forward reaction, when both of them will get equal to each other, that would be known as a chemical equilibrium, because they would be balanced, right? जब एक रिएक्शन दूसरे रिएक्शन की बिल्कुल इक्वल हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन एक दूसरे के सेम हो जाएंगे, तो वो बैलेंस हो जाएंगे इवेंचुअली. दैट इज नोन एज अ केमिकल इक्विलिब्रियम. लेकिन वो एक केमिकल रिएक्शन होना चाहिए. द रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन विल बिकम इक्वल. सही है, जो जितना रेट है ना फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन का, वो इक्वल हो जाना चाहिए. रेट इज व्हाट? केमिकल रिएक्शन में रेट स्पीड को बोला जाता है. सही है, तो जब फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड विल बी इक्वल टू बैकवर्ड रिएक्शन की स्पीड, दैट इज नोन एज अ केमिकल इक्विलिब्रियम, बिकॉज दे वुड बी बैलेंस्ड. अब हम ये देख लेते हैं कि व्हाट अ केमिकल रिएक्शन एक्चुअली इज. A chemical reaction is a reaction in which new substance is formed by adding, or you can say separating, or by rearranging the chemical equation. For example, if you add something to a substance and eventually you get a new substance, right? So when you add on two substances, you form a new chemical reaction. When you uh, take out a substance from a reactant which is going to form a product, obviously another product would be formed, not the one which you are wanting to form. If you rearrange the formula, like for example, if you displace two things, if this is Li and this is KCl, and you rearrange them like LiCl and then K. You change the positions, right? So whenever you add on something to a substance, or either you take out something, you separate something from a substance, or you rearrange the formula, then that is known as a chemical reaction. A chemical reaction, in simple terms, you can say, when you that is the when you form a new product from the reactants. For example, if I have two reactants, the very first reactant is um, carbon dioxide and the second reactant is oxygen. So obviously a new substance will be formed which will be carbon dioxide. So basically this carbon and oxygen combined to make carbon dioxide, which is a new product. तो अभी कोई नया प्रोडक्ट बना हमारे पास, that is known as a chemical reaction. When you combine two or more than two reactants to form a product is known as a chemical reaction. You can say that as well. सही है. फिर हमारे पास एडिशन रिएक्शन है. एडिशन रिएक्शन में you add two things to form a new substance. For example, you add N2 and you add 3H2
ये मिलकर बनाएंगे NH3। तो addition reaction is when two or more than two reactants react to form a new substance or a new product। सही है। फिर दूसरा है आपके पास decomposition reaction। अब बेसिकली जो decomposition reaction है इसमें होता क्या है कि reactant is decomposed into its simplest form। जब वो ब्रेक डाउन हो जाता है अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर, जैसे कि आपके पास CaCO3 है, तो it will break down and it will in its simplest form it will form CaO and CO2। सही है। फिर तीसरी टाइप है सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक या फिर एक से ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट्स जो होते हैं वो अपने आप को रिप्लेस कर देते हैं किसी और एलिमेंट के साथ, या फिर वो उस एलिमेंट को कम्प्लीटली रिमूव कर देते हैं उस पूरे ही सब्सटेंस से, उस पूरे रिएक्शन से। सही है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दिया अभी कि LiCl और K, ये अगर इनमें सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा तो दे विल फॉर्म KCl एंड देन Li। तो यहाँ पे क्या हुआ कि इस K ने Li को रिप्लेस किया और ये Li यहाँ आ गया इस साइड पे, K किसके साथ चला गया, KCl के साथ। दिस वाज समथिंग लाइक KCl एंड प्लस Li हो गया। लेकिन अब इसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि K जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव होना चाहिए Li से, बिकॉज वो एलिमेंट को रिप्लेस कर रहा है कम्प्लीटली, तो उसके पास इतनी रिएक्टिविटी होनी चाहिए कि वो रिप्लेस कर सके। सही है। फिर हम बात करते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। अब बेसिकली जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है दिस इज वेरी सिमिलर टू सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, लेकिन इसमें दोनों के दोनों एलिमेंट्स, दोनों मतलब कैटाइन एंड एनाइन रिप्लेस कर देते हैं एक दूसरे को इन एन एक्वस मीडियम। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपके पास हम एग्जाम्पल ले लेते हैं HCl है एंड NaOH है। तो अगर इनमें सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का प्रोसेस होता है तो ये क्या होगा, NaCl के साथ बॉन्ड बनाएगा, दिस विल बी समथिंग लाइक NaCl डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में, और ये जो OH है ये H के साथ कंबाइन हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा H2O। राइट। इसने Na ने Cl के साथ कंबाइन हुआ और OH H के साथ कंबाइन हुआ, मतलब दोनों ने कैटाइन और एनाइन ने अपनी पोजीशन चेंज की, रिप्लेस किया एलिमेंट्स को, तो वो क्या कहलाएगा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाएगा। फिर हम बात कर लेते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन की। ये जो वर्ड एक्सो लिखा है मैंने यहाँ पे, इसका मतलब होता है एमिट आउट होना या रिलीज होना, एंड थर्मिक मीन्स हीट। सही है। तो when heat is released out, when it is emitted out from the chemical reaction, that is known as exothermic reaction। और इस पे हमेशा पॉजिटिव चार्ज आता है। एक्सोथर्मिक में हमेशा नेगेटिव चार्ज आता है, बिकॉज ये हीट को रिलीज कर रहा है तो इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा। अब सिमिलरली एक और प्रोसेस है विच इज एंडोथर्मिक। Endothermic reaction is when heat is required for the chemical reaction to start, क्योंकि endo का मतलब होता है in and thermic means heat, so when you need to give heat to the chemical reaction to start, that is known as an endothermic reaction। सही है। फिर आपके पास endothermic reaction के एग्जाम्पल है, जैसे कि you have CaCO3
ये बनाएगा CaO प्लस CO2। इसमें हीट रिक्वायर्ड है CaCO3 को टू प्रोसेस द रिएक्शन, और इस पे हमेशा पॉजिटिव चार्ज आता है बिकॉज इट टेक्स हीट फॉर द रिएक्शन। सही है।